Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and well at your home. So children, this is the first chapter of class 3 and this is the revision of chapter first. And what was the name of our chapter? The name of our chapter is Up in the Sky. So children, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो लैंड एरिया है ना, उधर हमारे आसपास क्या है, जैसे प्लांट्स है, हाउसेस है, प्लेग्राउंड्स है, डिफरेंट एनिमल्स है एंड डिफरेंट लैंड ट्रांसपोर्ट है, 2 व्हीलर, ओके, 4 व्हीलर. सो हमने किसका बारे में पढ़ा? हमारे आसपास के बारे में, हमारे नेबरहुड के बारे में, है ना. बट आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर हैं? जो ऑब्जेक्ट्स स्काई में हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आसमान में हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे. क्लियर? नाउ सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम. There are 8 planets in solar system. How many planets? There are 8 planets in solar system. This is the sun and this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are the 8 planets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 that revolve around the sun. जो sun है, this is our sun. जो sun का क्या करते हैं? that revolve around the sun. sun का पूरा चक्कर लगाते हैं. Okay, so these are the 8 planets. And what is the name of these 8 planets? First is the Mercury. Second is Venus. Third is Earth. Fourth, Mars. Fifth, Jupiter. Sixth, Saturn. Seventh, Uranus. And the last one is the Neptune. Now these are the 8 planets in solar system. The sun and these 8 planets make the solar system. ये sun और ये जो सारे 8 planets मिलके क्या फॉर्म करते हैं? इनको कहते हैं solar system. So what is solar system? The sun and the 8 planets form the solar system. And how many planets? 8 planets. First is Mercury, second Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus and eighth Neptune. Clear? Now children, this is the sun. Okay, the smallest planet in this solar system is Mercury. And in which planet where we live? हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? Yes, good. We live on the Earth. किस में रहते हैं हम? Yes, this is the third planet in the solar system. ये कौन सा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का? जो 8 प्लेनेट्स है उसमें हमारा अर्थ का कौन सा नंबर पे आता है? This is the third planet. In this planet, in this Earth, we live. हम किस में रहते हैं? हम अर्थ में रहते हैं. हम एक प्लेनेट में रहते हैं और उस प्लेनेट का क्या नाम है? हम जिस प्लेनेट में रहते हैं उस प्लेनेट का नाम अर्थ है. ओके, एंड दिस इज द थर्ड नंबर. इसका कौन सा नंबर आता है? थर्ड नंबर. सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सन एंड द 8 प्लेनेट्स मेक द सोलर सिस्टम. जो सन और उसके 8 प्लेनेट्स है वो क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. दैट फॉर्म द सोलर सिस्टम. एंड देयर आर हाउ मेनी प्लेनेट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 planets in solar system and in which planet where we live, हम कौन से planet में रहते हैं? हम the planet that we live on earth, हम कौन से planet में रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. Clear? So this is the solar system. Now our next topic is what is heavenly bodies. Okay children, what do you see when you look at the sky? आप जब आसमान में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? During the day, what do you see? During the day time आप क्या देखते हैं? हमें तो कुछ नहीं दिखता है, बस क्या दिखता है? सन दिखता है ना? So we can see the sun during daytime and at the night what we see? Night में हमें क्या दिखता है? Good. Night में हमें दिखते हैं star. This is the moon. Okay. And star, moon. See children, all these objects, the sun, the star, the moon and the planet that we live. कौन से planet में रहते हैं हम? Good. This is the earth. हम किस planet में रहते हैं? अर्थ में रहते हैं. This is the earth. This is a planet. ये क्या है? Planet. कौन सा planet है ये? Earth that we live. So this, the sun, the star, the moon, the planet, all these are the heavenly bodies. ये सारे क्या हैं? Heavenly bodies. These objects that we see in the sky. जो objects हमें स्काई में, आसमान में दिखाई देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज. व्हाट इज हेवनली बॉडीज? और हमें स्काई में क्या दिखते हैं? सन, स्टार, मून, प्लैनेट्स, दैट ऑल आर द हेवनली बॉडीज. और इनको क्या बोला जाता है? और भी ऑल्सो कॉल्ड एज द सेलेस्टियल बॉडीज. सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज को क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज. क्लियर? द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई. जो ऑब्जेक्ट्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं वो सारे क्या होते हैं? हेवनली बॉडी. व्हाट इज हेवनली बॉडीज? द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई. जो हमें जमीन पर नहीं, कहाँ दिखाई देते हैं? आसमान में. The sun, the star, the moon and planet, that all these are the heavenly bodies. Clear? Now our next topic is sun. This is the sun. Okay, this is our sun. So children, sun is made up of, sun किससे बना है? It is the hot ball of, it is the hot ball of gases. इसमें ये बहुत गर्म बॉल है. किसकी? गैसेस की. और we can also write it is a hot ball of fire. और हम क्या बोल सकते हैं कि ये आग की बहुत बड़ी क्या है? बॉल है. What is sun? How it is made up of? It is made up of, ये किससे बना है? It is the hot ball of gases. ये एक hot ball है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर gases है. And we can also say that it is the hot ball of fire. Fire means क्या होती है? आग होती है. ये आग की बहुत बड़ी बॉल है. अगर हम इसके पास में जाएंगे, हम जा ही नहीं सकते क्योंकि ये हमसे इतना दूर है, फिर भी हमें क्या दे रहा है? हीट दे रहा है, गर्मी दे रहा है. अगर हम इनके पास जाएंगे तो हम बिल्कुल मर जाएंगे, जल जाएंगे. सो व्हाट इज सन? सन इज मेड अप ऑफ द हॉट बॉल ऑफ gases and it is the hot ball of fire.
नाउ द थर्ड पॉइंट, और क्या सन के बारे में आप क्या जानते हो? गुड, इट गिव्स अस, ये हमें क्या देते हैं? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें क्या देते हैं? हीट एंड लाइट, जो हीट आती है, जो गर्म इसकी रेस से हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है। और मॉर्निंग में कितना ब्राइट हो जाता है ना? तो किससे होता है? क्योंकि ये इसकी क्या आती है? लाइट आती है। नाइट में अगर लाइट ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, तो कैसा हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो नाइट में हम सन क्या हो जाता है? सेट हो जाता है शाम से, तो फिर क्या हो जाता है? नाइट में डार्कनेस हो जाती है ना? फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं। बट जब मॉर्निंग होती है, सनराइज होता है, तब क्या आता है? इट गिव्स अस लाइट, हमें क्या देते हैं? लाइट। सो द सन gives us heat and light. Now one more thing that sun produce. sun क्या करते हैं बेटा? the sun is a star. sun भी क्या है? the sun is a star, सबसे बड़ा स्टार है। कौन सा? sun। ये क्या है? the sun is a star. okay, and it is nearest to the earth. ये अर्थ के क्या है? नियरेस्ट है, पास में है। ओके, तो सन इज अ स्टार। व्हाट इज? द सन इज अ नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लेनेट। ये हमारी अर्थ का सबसे पास में जो स्टार है। बाकी सारे स्टार्स क्या है? That are very far from us, वो बहुत दूर है। बट ये जो सन है वो हमारी अर्थ के क्या है? नियरेस्ट है। नियरेस्ट मीन्स पास में है। द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अवर प्लेनेट अर्थ। नियरेस्ट स्टार कौन सा है हमारी प्लेनेट अर्थ का? गुड, दैट इज सन। वो क्या है? सन है। एंड इट हैज मेनी टाइम bigger than earth. bigger means क्या होता है? बड़ा। किससे बड़ा है? जो सन है वो बहुत बड़ा है। it has many time bigger than earth, हमारी अर्थ that we live, जो हम जिस प्लेनेट में रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? अर्थ। तो हमारी अर्थ से many times कौन बड़ा है? the sun। कौन बड़ा है? the sun. Okay, and it gives us heat and light. Now the fifth point is the sun is the source of energy. The sun is the source of energy. sun हमें क्या देता है? और एनर्जी। कौन सी एनर्जी? That is the solar energy. Which energy? solar energy. सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है? the solar energy. the energy that obtained by the the energy that obtained from the sun, that is called the solar energy. and इस सोलर एनर्जी से हम क्या यूज कर सकते हैं? सोलर एनर्जी का हम क्या यूज कर सकते हैं? इट इज यूज टू कुक फूड, खाना बनाने के काम आ सकता है। टू रन व्हीकल्स में, जो व्हीकल्स को चलाने में, गाड़ी को चलाने में काम में लिया जा सकता है। ओके, इट इज यूज टू रन व्हीकल्स एंड इट इज यूज टू कुक फूड। नाउ What do you learn about the sun? आपने क्या पढ़ा सन के बारे में? First, the sun is a hot ball of gases. सन क्या है? hot ball है। किसकी बनी? gases की। और we can say that the sun is the hot ball of fire. ये hot ball है किसकी? fire की, आग की। Okay? Now the third is it gives us heat and light. ये हमें क्या देते हैं? हीट एंड लाइट।
It gives us heat and light. Now the fourth one is the sun is a star. Sun क्या है? Star है. Sun is the nearest star of our planet Earth. हमारी अर्थ जो हमारा प्लेनेट है, ये प्लेनेट कौन सी, हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं? अर्थ. तो ये अर्थ का सबसे पास का स्टार कौन सा है? सन. द सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर प्लेनेट. सबसे पास में जो स्टार है हमारी अर्थ का, वो कौन सा है? सन है. सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ. नाउ फिफ्थ इज द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. That is called the solar energy. The energy that obtained from the sun. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, that is called the solar energy. And this solar energy, it is used to cook food. इसका क्या यूज होता है? खाना बनाने में. And it is also used to run vehicles. Clear? Now, and the sun is bigger than the earth. The sun is many times bigger than the earth. जो sun है बहुत ज़्यादा बड़ा है. किससे? हमारी प्लेनेट अर्थ से. कितना बड़ा? बहुत बड़ा. The sun is bigger than the earth. Clear? Our next topic is moon. Our next topic, the heavenly body, that is the moon. The moon is round like the sun. This is the moon. This is the moon. It is round like the sun. ये कैसा है? ये भी सर्कल है, ये भी राउंड है. किसके जैसा है? As it is sun जैसा. But it is the closest neighbor of the earth. This is our earth. ये हमारी क्या है? Earth. This is our planet. This is our planet that we call Earth. जिसको हम क्या बुलाते हैं? Earth. This is the moon and this is the Earth. So neighbor means पड़ोसी. Okay? आपके neighbor, आपके पास में कौन रहते हैं? है ना? ऐसे ही जो हमारा Earth है, ये क्या है? One of the planet of the solar system. एक planet है. क्या है? एक प्लेनेट है. डेट वी लिव, जिसमें हम रहते. सो दिस इज द अर्थ. सो इसका क्लोजेस्ट नेबर, सबसे पास में जो नेबर है, पड़ोसी है, वो क्या है? मून है. ओके. सो मून इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ. ये सबसे क्लोजेस्ट नेबर है, सबसे पास का नेबर है. क्या है? दैट इज द मून. And it revolves around the earth. See, it revolves around. ये जो मून है, ये जो अर्थ का क्या करता है? रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है. See, this is the moon. This is moon. This is moon. और ये क्या करता है? किसको चक्कर काटता है? ये अर्थ का. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ये किसका, किस प्लेनेट का रिवॉल्व अराउंड करता है? अर्थ का. सो दिस इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. ये अर्थ की क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है. क्या है? नेचुरल सैटेलाइट. सी, सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट, व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट? आपने सोलर सिस्टम में क्या पढ़ा?
सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सन का चारों ओर क्या सन के चक्कर कौन काटता है? ऑल द 8 प्लैनेट्स, सारे 8 प्लैनेट्स किसके चारों ओर घूमते हैं? सन के। बट सैटेलाइट में क्या होता है? पर्टिकुलर प्लैनेट के जो चक्कर काटता है, जैसे हमारा अर्थ है, ये क्या है? हमारी अर्थ एक प्लैनेट है। ये क्या है? दिस इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम एंड द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और कौन चक्कर काटता है इस प्लैनेट का? मून। तो ये मून जो है एक क्या हो गई? सैटेलाइट हो गई। किसकी? अर्थ की। इसको किसी मैन ने नहीं बनाया है, इसलिए ये क्या है? दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसको किसी पर्टिकुलर ह्यूमन ने बनाया नहीं है। सो दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट। क्या है? कौन है नेचुरल सैटेलाइट? दिस इज द मून। क्लियर? सन के चारों ओर कौन काटता है चक्कर? प्लेनेट। और प्लेनेट के चारों ओर कौन काटता है? सैटेलाइट। सो बहुत सारी सैटेलाइट होती है, नेचुरल और मैन मेड। द सैटेलाइट डेट मेड बाय द मैन, जो सैटेलाइट मैन बनाता है वो मैन मेड कहलाती है। और जो सैटेलाइट मैन नहीं बनाता है, जो नेचुरली रहती है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट जो पर्टिकुलर प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है, डेट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, डेट इज कॉल्ड द सैटेलाइट। और हमारा जो अर्थ है उसके सबसे पास का नेबर कौन सा है? डेट इज द क्लोजेस्ट नेबर, मून। कौन सा है? मून। सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर प्लेनेट अर्थ। क्लियर? नाउ moon. So children, moon, this is the moon. There is no air on moon. No air means यहाँ पर air नहीं होती है। कहाँ पर? moon में। There is no air on moon. हमारी अर्थ में क्या है? air होती है। Okay, so that's why we live, इसलिए हम जिंदा है। Now moon पे क्या है? There is no air and there is big holes on moon. क्या है इसमें? बहुत holes है and big holes and craters. There is big holes and craters on moon. Craters means ऐसे deep गड्ढे टाइप। ओके, सो देयर इज, अगर हम पास से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे होल्स हैं और क्रेटर्स हैं, गड्ढे टाइप, है ना। सो ऑन मून, कहाँ पर है? मून पर। नाउ थर्ड पॉइंट, इट हैज नो लाइट्स ऑफ हिज own. It has no light of its own. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। किसकी? दिस मून की। It has no light of its own. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। It reflects by the light of sun. ये किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट करता है? सन की। किसकी लाइट से? सन की। ओके, तो फर्स्ट व्हाट डू यू नो अबाउट द मून? आपने क्या पढ़ा मून के बारे में? That moon is the natural satellite of our planet Earth. Second thing, what do you learn? Second one is it is the closest neighbor of our planet. ये सबसे closest neighbor है। कौन है? Moon. Third, it has no air. There is no air on moon. Moon पर कोई भी air है ही नहीं। Fourth one, there is big holes and craters on moon. And the fifth one is it has no light of its own. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। It reflect by the light of sun. ये किसकी लाइट से रिफ्लेक्ट, किसकी लाइट से चमकता है? That is the sun. किसकी लाइट से चमकता है? कौन इसको लाइट देता है? सन। इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। Now
देन द सन। जो मून है वो बहुत छोटा है, किससे? सन से। जब हम अर्थ से देखते हैं, व्हेन वी सी ऑन अर्थ, जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो सन है और जो मून है वो क्या है? सेम साइज के। ऐसा दिखता है ना? यस। हमें क्या दिखता है? व्हाट वी सी? हमें ये दिखता है कि ये क्या है? मून है, और ये क्या है? सन है, और उनकी साइज भी क्या है? सेम है। बट द सन इज बिगर देन द मून। ये हमें मून हमें क्यों पास में दिखता है? क्योंकि why? Because it is the closest neighbor of our planet. ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर क्या है? मून है। सबसे पास में क्या है? मून है। और जो सन है वो क्या है? बहुत दूर है। सो ये हमें पास है इसलिए हमें बड़ा दिखता है, ये हमसे दूर है इसलिए ये छोटा दिखता है। बट सन जो है बहुत बड़ा है। दिस इज जो सन है, दिस इज द मच बिगर देन द मून। ये मून से क्या है? बहुत बड़ा है। बट कौन पास में है? द मून इज क्लोजर टू द अवर प्लेनेट। मून क्या है? नियर है, पास में है। किसके? हमारे प्लेनेट के। सो इट इज लुक लाइक बिग, इसलिए ये बड़ा दिखता है। बट इट इज मच स्मॉलर देन द सन। ये बहुत क्या है? छोटा है। और हमारा जो सन है दैट इज, ये सबसे बड़ा है। ओके, दिस इज आवर सन। क्लियर? नाउ द टू men that land on moon, कौन कौन से थे वो टू men? Now the two men that land on moon, that is called, उनका क्या नाम था? In 1969, which sun? 1969, the two men, that is the Neil Armstrong and Edwin Aldrin. Which two men? Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first people to land on the moon. Which two people? सबसे पहले जो मून है, जो चंद्रमा है, उन पर जाने वाले टू men कौन से हैं? That is, which two men? That is the moon. कौन से मैन हैं जिन्होंने फर्स्ट कहाँ पर गए थे? मून पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, that are the two men that land on the moon in 1969. अभी क्या चल रहा है? 2020, 2020. So कौन से सन में गए थे ये दोनों मैन? That is in 1969, the Neil Armstrong and the Edwin Aldrin, that are the two men that land on the moon. ये कहाँ पर गए थे? मून में। ओके, कहाँ गए थे? मून में। And no, there is no air. यहाँ पर क्या है? बिल्कुल भी एयर नहीं है। So life is not possible on moon. इसलिए जो लाइफ है, जैसे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, ऐसे मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो हमने क्या पढ़ा मून के बारे में? गुड। मून क्या है? मून, देयर इज नो एयर ऑन मून। मून पे हवा नहीं है। एंड द लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून, इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। द थर्ड थिंग, इट हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। It reflects by the light of sun.
है, and the two men that land on moon, that is the नील आर्मस्ट्रॉन्ग and एडविन एल्ड्रिन। कौन से दो मैन हैं जो मून पर गए थे फर्स्ट? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। एंड इन विच ईयर? इन 1969। कौन से ईयर में? इन 1969। Clear? Okay, children. You understand the chapter well, I hope. Okay, goodbye. Thank you.